हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रॉडकास्ट। तो आप सब हमसे पूछा करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताओ, एक्चुअल सिचुएशन बताओ। सो हियर वी आर विद द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूके। हाय विश्का, हाय देवांशु, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अ लिटिल। Hi everyone, I am Avishka Agarwal and I am doing my bachelor's in psychology from University of Leeds. Hello everybody, I'm Devanshu Agarwal and I recently graduated from chemical engineering from University of Leeds, UK. सो प्लीज टेल मी अ लिटिल कि आपने ये यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे सोचा एंड एग्जैक्टली हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज डिड यू गाइस अप्लाई टू? So we both are brother and sisters, and together we applied to 5 universities, which were different for each of us. Me specifically, I applied to Manchester, University of Leeds, University of Birmingham, University of Bath, and University of Liverpool. Shorting down the list, my final choices were University of Leeds being my primary choice and University of Bath being my secondary choice. All of this was applied through a consultancy firm and we used UCAS portal that is used for bachelors जिसमें आप maximum 5 universities apply कर सकते हो. After that, डिसीजन जो था हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का वो ये था cause my sister wanted to study psychology and I wanted to do chemical engineering. University of Leeds was good in both of these subjects and mutually we decided to go together to the UK to the same university. The experience was very similar for me as well. I applied to 5 different universities, which were University of Leeds, University of Bath, University of Birmingham, University of Newcastle, and Queen Mary in London. But Leeds being the best amongst them for psychology and for chemical engineering, so we decided to go to University of Leeds together. सो जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वो जर्नी कैसी थी, एप्लीकेशन प्रोसेस की और ये सब अप्लाई करने की जर्नी कैसी थी? सो सबसे पहले तो आ जाता है कि आपको कोर्स पता होना चाहिए कि आपको कौन सा डिसाइड करने जाना है. तो आई डिसाइडेड फॉर साइकोलॉजी बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मेंटल हेल्थ एंड द फील्ड इन इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग. सो आई डिसाइडेड टू गो टू यूके विद बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर एक्सपोजर एंड टेक्नोलॉजी फॉर द फील्ड. एंड उसके बाद व्हेन वी डिसाइडेड द कोर्स we decided on the universities we wanted to apply for, and once that was done there is a portal called UCAS to apply in universities in the UK. तो जब हमने उसके थ्रू अप्लाई किया उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने अपने फिल करे, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एंड SOP विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो वो हर यूनिवर्सिटी के पास जाता है विच टेल्स द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कि हम कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उस कोर्स को करने के लिए एंड हाउ वाई वी वांट टू डू द कोर्स. And once all of that is done and our class 12th results came out, we meet the conditions for the university. And once that is done, we get an unconditional letter and we apply for visa. And once visa is applied, then we can go and study in the UK. Adding to that, with the SOP, what we require for the admission process is that you need a resume from your faculty, that is your school teachers, which are the two recommendation letters you require. One is academic and the other one is specific to the course that you're going to study. That I was doing chemical engineering, so I required the recommendation letter from my chemistry teacher. Considering Avishka, she was doing her psychology, so she required a recommendation letter from a class teacher or any other academic teacher that you have good bonds with, and a psychology teacher, so that the university is sure that the person is really interested in the course and can do well in the course as well. Also, what I'll suggest during the application procedure is that you need to make your mind 100% sure that which particular country you want to go, as well as which particular university and area of that country you want to go, because every area has their own benefits as well as disadvantages. कई जगह people focus कि जहाँ पे Indians ज़्यादा हो या फिर अपनी particular कॉन्टिनेंट के लोग ज़्यादा हो, so that they can mingle along easily. एक वो फैक्टर रहता है. फिर कई लोग होते हैं जिनको इंटरनेशनल कनेक्शंस बनाने होते हैं, तो पीपल प्रेफर कंट्रीज जहाँ पे उन्हें एशियंस कम मिले ताकि दे कैन हैव दैट इंटरनेशनल कनेक्शन एज वेल. सो नीड टू मेक श्योर दैट फ्रॉम डे वन. ओके, सो एज यू सेड कि रिकमेंडेशन लेटर जो होता है वो टीचर स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर्स से चाहिए होता है. तो सिंस यू वर डूइंग अ कोर्स इन साइकोलॉजी, so you had a teacher at a school who were teaching psychology? Yeah. So I did my class 12 from DPS Azad Nagar. Okay. And my subjects were physics, chemistry, biology, psychology and English. Oh, nice. तो मेरे पास psychology teacher थी and also my biology teacher was also my class teacher. उन्होंने भी बहुत support किया था. So I got 2 recommendation letters, one from my principal of the school and other from my psychology teacher.
Okay, see, just in case if some student doesn't have a specific teacher for the subjects they're applying to, Yeah. तो उसके लिए कोई अलग In that case, there could be just 2 different academic teachers, considering जो भी आपके unconditional offer या फिर conditional offer में subject requirements आई होंगी. जैसे हम लोगों के में आया था, you need certain percentage in your English, Maths, Physics and Chemistry. तो अगर आपकी मानिए केमिकल साइकोलॉजी का अगर उसमें नहीं है टीचर, सो यू कैन गिव योर रिकमेंडेशन लेटर फॉर द अदर 4 सब्जेक्ट्स. उन टीचर के थ्रू आप रिकमेंडेशन लगवा सकते हैं. Okay, nice. Okay, so since we were on the topic of SOP, Yeah. so when you were writing SOP, actually SOP बहुत ऐसा tiresome procedure लगता है जब स्टूडेंट अगर ऐसे बाहर से देखता है कि यार ये SOP देखी जाएगी तो मुझे उसमें क्या मेंशन करना है. तो when you were writing your SOPs, तो क्या चीज़ें ऐसी थी जो माइंड में रख करके फिर SOP सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी होना जब आप एसओपी लिख रहे हैं. फर्स्ट यू शुड नो व्हाई यू वांट टू डू द कोर्स एंड यू शुड नो कि वो कोर्स जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका वर्ल्ड रैंकिंग क्या है एंड उनका एवेन्यू कैसा है कोर्स का. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इन साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रिसर्च चलती है बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इज़ अ पार्ट ऑफ रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटी. सो जितने भी वहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आपको उसको अपने गोल्स फ्यूचर गोल्स एंड करियर गोल से अलाइन करते हुए उस चीज़ को लिखना होता है अपने एसओपी में. एंड प्लस आपको अपना पर्सनल लाइफ भी उस तरह से एक्सप्लेन करना होता है कि आपके जितने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं अभी तक उसने कैसे आपको शेप किया है कि आपका इस डायरेक्शन में मन बन रहा है कि आपको यहाँ पे आगे अपना फ्यूचर बनाना है. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एडिंग टू दैट, एसओपी जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए सबमिट कर रहे होते हैं, यू शुडंट कॉपी पेस्ट दोज एसओपीज. आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज करके, क्योंकि मेन आपका कंटेंट सेम रहेगा, दैट व्हाई डू यू वांट टू परस्यू दैट पर्टिकुलर कोर्स इन ऑल दीज यूनिवर्सिटीज, दैट वुड बी सेम, योर इंट्रोडक्शन वुड बी सेम, बट व्हाई दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इट इज सपोज टू बी चेंज पर द यूनिवर्सिटी, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी के एडवांटेजेस अलग होंगे. कहीं पे रिसर्च ज़्यादा होगी, कहीं पे आपको कनेक्शन ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे हो सकता है आपको कोई साथ में मॉड्यूल मिल रहा हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो साथ में, जिसमें आप डुअल करियर सोच रहे हो या कुछ भी हो सकता है. सो यू हैव टू मेक योर एसओपीज इन दैट पर्टिकुलर वे. यू जस्ट डोंट नीड टू कॉपी पेस्ट द सेम एसओपी एवरीवेयर. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंट्री यू आर अप्लाइंग टू. सो जैसे यूके में भी अप्लाइड थ्रू यूगैस, तो यूजली सिर्फ एक ही एसओपी जाता है टू ऑल द यूनिवर्सिटीज यू आर अप्लाइंग टू. फॉर एग्जाम्पल यूके में मैक्सिमम 5 यूनिवर्सिटीज यू कैन अप्लाई टू. तो उन 5 के लिए आपको अपना एसओपी इस तरह से ऑल्टर करना होता है कि इट फिट्स द यूनिवर्सिटी डिमांड्स. एंड देन यूएस में फॉर एग्जाम्पल हर यूनिवर्सिटी अलग एसओपी मांगती है आपसे. लाइक फॉर माई केस, भले ही मैंने यूके में एक ही एसओपी दिया था बट यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ का क्योंकि कोर्स डिफरेंट था तो उन्होंने मुझसे फिर से मांगा था कि मैं एक कोर्स ऑल्टर्ड स्पेसिफिक उनको एसओपी भेजूँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग से ही जब आप लिख रहे हो कि आपके पास 3-4 वर्जन्स होने चाहिए ताकि आप उसको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कोर्सेज के अकॉर्डिंग भेज सकें. So, since we are discussing all this, so can you tell me a little ki how much role does a consultancy firm play in these procedures? Like since you said you were with a consultancy firm, so what do you think कि this was the process जो अगर consultancy firm ना होती तो मैं कर नहीं पाती अपने आप या मुझे बहुत टाइम लगता ऐसा कुछ. So is there something? So let's say आपने बोला टाइम लगता, because we were also very new to this, applying for an abroad education. हम लोग we studied over here till our grade 12th, and after that going to a new country is a good amount of step that you need to take, and you have to have that dedication to do that. उसके लिए आपको SOPs के लिए sample SOPs, our consultancy firm helped us with that. They also helped us to write the proper SOP, like we submitted them a draft SOP, then they would suggest us some changes कि आप ये change कर सकते हो. They would talk to us कि आप mainly what is your ideology about writing the SOP, and then they would also help us to frame the sentences sometimes. And at the end, जब वो पूरा draft बन जाता था, they actually cross-checked with us that is your particular point coming out through your SOP or not, and after that when it was submitted. So अगर हमारी firm नहीं होती या फिर कोई particular helping guide हमें नहीं मिला होता, then it could have been that वो SOP देख के universities could have easily rejected us. Because that final check with the masters is of course important. Yeah, and SOP plays a very vital role in all of this because आपके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे, आपका मार्क्स मीट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका पर्पस ही क्लियर नहीं होगा तो समटाइम्स यूनिवर्सिटी जस्ट रिजेक्ट्स योर एप्लीकेशन इवन आफ्टर यू मेट ऑल ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स. तो SOP पे सबसे ज़्यादा फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay,
So all of this stuff, technical stuff. Now we'll talk about since you guys are born and brought up in Kanpur only, right? Yeah. So when you guys moved to UK, so what was that first impression like of your university when you entered that? How was it? University impression was mind blowing because the culture and the environment was very different. भले ही कल्चरल शॉक बहुत सारे लगे उसके बाद, बट वो फर्स्ट इम्प्रेशन वहाँ जाके वहाँ का ग्रीनरी एंड द कैंपस में जो डाइवर्सिटी थी वो देख कर भी नहीं लग रहा था कि आप एक्चुअली किसी फॉरेन लैंड में है. इट वाज अ मिक्स ऑफ ऑल द कल्चर्स, ऑल डिफरेंट कंट्रीज एंड नेशनैलिटीज. इट वाज जस्ट very overwhelming at the same time, but I wish I can just go back to that day and experience it all over again. I would say it was a bit nervous also for me. I was very nervous कि एकदम से नई जगह है, नए लोग हैं, एकदम नई कंट्री है. You have to stand there for yourself. आपको सब खुद से मैनेज करना है. बट साथ ही में वो सब नई चीज़ें देख के, कैंपस में जो सारे स्टॉल्स लगे थे, कैंपस में अपने स्कूल की बिल्डिंग देख के अंदर से एक एक्साइटमेंट था कि अरे वाह, यहाँ पे आके पढ़ना है, यहाँ पे आके कुछ करना है, आगे के लिए अपने आप को सेटल करना है, या जो भी पर्टिकुलर रीजंस है क्यों आप आए हो यूनिवर्सिटी में. काफ़ी एक्साइटेड था. साथ ही साथ वहाँ पे इतने सारे सोसाइटीज़ के स्टॉल्स लगे हुए थे जिसमें आपको इंटरेक्शन बढ़ रहा था. तो एक अंदर से आपको खुद ही मोटिवेशन आता है कि वो वाह, यू कैन एक्चुअली कम हेयर, यू कैन एक्चुअली हैव न्यू फ्रेंड्स. आपको नए नए कल्चर सीखने को मिलेंगे. Britishers being very different from the Indian cultures, with the weather also being very different during September. यहाँ पे जैसे सितंबर में थोड़ा रेनी सा रहता है, वहाँ पे आप दो जैकेट एक स्वेटर लेके बैठे हुए हो. काफ़ी डिफरेंट सा माहौल था, बट एक्साइटिंग था काफ़ी. So since you guys were talking about diversity, so how much diversity was there in your class? So for me, psychology में I would say 90% home students which are Britishers and then 10% international students, and में से मैं और एक और Indian student है बस. लेकिन उसके अलावा we have students from USA, from Mexico, from China, Japan and यूरोपियन कंट्रीज से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो डाइवर्सिटी इज वेरी हाई. उसकी वजह से हम लोग का जो जिस एक्सपोजर के लिए हम लोग गए थे वो बहुत ईजिली मिल जाता है. For me, chemical engineering, we had most of the people from Middle East countries and people from British England itself. उसके अलावा Indians का ratio थोड़ा कम था, including me. There were total, I'll say 5 Indians in my course. But other engineering, if we consider computer science, there were a lot of Indians in computer science as well as in civil engineering. उसके साथ साथ we have students from USA, we had students from France as well, which was a new experience for me because I've never met anybody from France in my life before that. साथ ही साथ Middle Easterns chemical engineering में काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि वहाँ पे industries काफ़ी ज़्यादा है, तो people come to get their skills upgraded and then they study over here in the UK and then they go back to all their own home nation and do work. Okay, since इतनी सारी diversity होती है, तो is there a language barrier somewhere? Like France से students हैं या और European countries से हैं, तो is there a language barrier? All of us speak English there, जितने भी students आए हैं, but accent का बहुत problem होता है वहाँ पे. And because University of Leeds Northern England में है, तो वहाँ पे accent थोड़ा thick हो जाता है. So for me, it took me almost 2 months to get used to the accent, and even when professors were teaching वहाँ पे नहीं समझ आता था कि वो क्या पढ़ा रहे हैं. तो बहुत टाइम लगा था बस उस चीज़ के गेट यूज टू द फैक्ट कि हाँ ठीक है, इस तरह से वो बोल रहे हैं, वो ये बोलना चाहते हैं. और जो कॉमन एक्सप्रेशंस भी जैसे वो लोग जो यूज़ करते हैं, कभी कभी उसका मतलब भी नहीं पता होता. तो वो उन सब एक्सप्रेशंस को समझना, उसको यूज़ करना, वो भी एक लर्निंग कर्व था, बट यू गेट देयर इवेंचुअली. For that, I'll suggest you should actually watch a bit of British web series या फिर थोड़ी movies आप पहले से देख लोगे तो थोड़ा idea फिर भी लग जाता है. But when you go there in your real life, it is a bit different, but you can easily grasp it with due course of time. So if you could go back to your admission time 3-4 साल पहले, so is there something that you want to do differently? Like if you have applied to a different university or a different course, is there something that you might want to do different? Yes, sure. Definitely not the course. I always wanted to do chemical engineering. I was sure for that. Universities also, I was very happy at that particular point of time also, which every university applied to. But I would have definitely changed the timing that I gave my applications because I applied in later June or July for my September intake. Had I known that if I would have done
my applications a bit earlier, say starting from September, October previous year, I could have got more exposure for that particular nervousness that I had. वो मेरे को काफ़ी easy पड़ा होता because मैं तब तक काफ़ी सेट हो जाता उस एप्लीकेशन प्रोसीजर में, क्योंकि मेरे को एकदम एंड में ऑल दैट वीज़ा प्रोसीजर इन द सेम टाइम कंडीशनल ऑफर कब आएगा, अनकंडीशनल ऑफर कब आएगा, कैसे कैसे सब अरेंज करना है, वो तब तक पूरा सॉर्ट हो चुका होता. बाय द एंड ऑफ जून जब मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की होती, तब तक आई वुड हैव एक्चुअली गॉट माय यूनिवर्सिटी अनकंडीशनल ऑफर एंड आई वुड हैव बीन पैकिंग माय बैग्स टू गो टू द यूके. उसके साथ ही साथ आई वुड हैव ऑल्सो connected to my professors on LinkedIn थोड़ा early. I connected to my fellow classmates and batchmates पहले से on Instagram as well as on WhatsApp groups, but I never contacted my academic professional people there. वो अगर मेरे को एक मौका मिला होता तो मैं LinkedIn पे उनके थ्रू पहले और कनेक्ट करना चाहता, ताकि मेरे को और एक क्लियर पिक्चर मिल पाती कि आपकी आपका कोर्स क्या है. For that, there's this one thing that the universities in the UK do that is called open days for offer holders and for prospective students also. If somebody has a chance, if they have their UK visa beforehand for some particular reason, say tourist visa also, if they have a chance, they should actually visit those open days, क्योंकि उससे आपको exactly पूरा campus घूमने को मिलता है, आपको accommodations first like in person देखने को मिलते हैं, और आपको course भी easily समझ आता है, because generally universities में professors जो होते हैं टेस्टर लेक्चर की तरह देते हैं, जिससे आप समझ पाते हो कि आपका कोर्स एक्चुअली क्या है, और आप अगर कुछ डिसबिलीफ में हो कि ये कोर्स ये सिखा रहा है तो आपका क्लियर हो सकता है पर्सपेक्टिव. Yeah, and I would add to that saying that international students के लिए वो जिनके लिए open days में जाना physically is difficult, you can also join open days online, क्योंकि काफ़ी सारी universities online open days भी करती हैं, and plus हर कंट्री में कहीं ना कहीं उनके इवेंट्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल लीड्स का इवेंट दिल्ली में हुआ था विच वी डिडंट अटेंड, तो वो सितंबर इनटेक के 1 महीने पहले होता है, जहाँ पे यू कैन मीट द स्टूडेंट्स हु आर आल्सो गोइंग टू जॉइन दिस यूनिवर्सिटी एट द सेम टाइम एज यू, एंड वहाँ पे दे टेल यू मोर अबाउट ऑन बोर्डिंग, कि आपको किस तरह से प्रेपरेशन करनी चाहिए एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एंड कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ जाके. फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल से कि ओरिएंटेशन वीक चल रहा है या फ्रेशर्स वीक चल रहा है, तो कोई बात नहीं, एक सेशन मिस कर दिया या कुछ सेशंस मिस कर दिए, बट ओरिएंटेशन सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गेट टू मीट योर न्यू क्लासमेट्स, get to form groups with them, go out for coffee or whatever, and you also get to meet your professors, which is very important, जो आपको बताएंगे कि next semester का आपका क्या रूटीन रहेगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो एक वो माइंडसेट से मैं और जाती, जो थोड़ा लाइटली गए थे स्टार्टिंग में, बट आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ कि नहीं, इसे और एंगेज करना है, बिकॉज दिस इज अ टाइम जहाँ पे सब लोग नए फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं. एवरीबडी इज न्यू टू द प्लेस, एवरीबडी इज न्यू टू द कंट्री, तो सब लोग वहाँ पे उतना ही डरे हुए हैं जितना आप हो, उतना ही वल्नरेबल है जितना आप हो, बट इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी फाइन एंड यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन इट विद एवरीबडी. Is this where we are hinting to the students कि नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है? Yes, When there Yes. Definitely, because इस networking से you would actually be helping yourself in a way that अगर आपको होम सिकनेस हो रहा है, थोड़ा लोनलीनेस लग रहा है, तो इसी नेटवर्किंग की वजह से आपको काफ़ी ईजी लगेगा वहाँ पे कोप अप करना और नए फ्रेंड्स बनाना. That's what I actually did when I went to the university for the first time, starting it from day one when we had our induction fairs. मेरे को जैसे ही कोई ना कोई नया बंदा दिखता था, स्पेसिफिकली उस टाइम पे थोड़ा होम सिकनेस ज़्यादा होता था, जैसे ही मुझे कोई एशियन दिखता था, आई वुड एक्चुअली आउट ऑफ द ब्लू कहीं पे भी पहुँच से मैं, अरे हेलो कहाँ से हो आप, क्या कर रहे हो, क्या कोर्स है, सीनियर हो, ये वो, उससे काफ़ी अच्छा सर्कल आपका एक बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से if you're going to the city center also, if you're going for some daily course also, you meet people and it makes you feel that somewhere away from the home, you're actually somewhere at your home, क्योंकि आप लोगों को जानने लगते हो, आपको एक सोशल सर्कल बनता है जिसकी वजह से आप इजी फील करते हो नई जगह. Okay, so is there any portal or something like that? क्योंकि जैसे सपोज करते हैं कि कोई स्टूडेंट है, वो बहुत इंट्रोवर्ट है, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि यार मैं सामने से लिंक्डइन पे कैसे पूछूं, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट या प्रोफेसर क्या सोचेगा मेरे बारे में. So for that, people over there are very open-minded. You can actually make the first move there. आप direct उन्हें message करो. फिर sometimes university actually helps you in that also. Specifically, University of Leeds में there is this one software that is called UniBuddy, जिसमें university actually helps you pair you with person which have same goal, if you can just same
हॉबीज या फिर आप उसमें अपना पूरा डेटा डाल सकते हो कि माई नेम इज दिस, आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, आई एम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और फिर यूनिवर्सिटी मैचेस यू विद समबडी हु इज from the same area and have same goals for life or something, and then you can mingle along with unke friends, your friends. It makes up a small social gathering, so it's easy. Apart from that, there are certain social clubs also that UK has, such as run clubs. Saturday, Sunday, आपको अगर hobbies है, कोई running है, mountain climbing है, कुछ है, तो वहाँ पे इस टाइप की societies भी हैं जिसमें आप जा सकते हो. Not only students, आपको प्रोफेशनल पीपल से भी कनेक्ट होने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से यू कैन एक्चुअली हैव गुड से अबाउट द लाइफ ओवर देयर कि आपकी क्या चल रहा है. And I would also say कि where you live is also very important. Also plays a very important part in this because, for example, for the first 2 years I was living in university halls, जहाँ पे I get to meet a lot of students from different courses, from different countries, and also I get to go to a lot of events with them. क्योंकि university halls usually rest life उनका एक team होता है जो बहुत सारे events ऑर्गेनाइज करता रहता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फॉर लोकल स्टूडेंट्स, एंड आपको ट्रैवल के भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उससे बिकॉज दे टेक यू आउट ऑन ट्रिप्स. एंड द होली, दिवाली या जो भी ब्रिटिश फेस्टिवल्स हैं उसमें भी दे डू समथिंग स्पेशल. तो अगर आप छुट्टियों में घर नहीं आ पा रहे हैं एंड यू डिसाइडेड टू स्टे बैक, तो उस समय भी वो आपको इवेंट्स इंट्रोड्यूस करेगा जिससे आपका नेटवर्किंग भी होगा एंड यू मीट पीपल हु आर ऑल्सो स्टेइंग बैक. तो आप उनके साथ प्लान्स बना सकते हैं एंड यू जस्ट गेट टू बी अ लिटिल लेस लोनली टुगेदर. Okay, talking about that, जब हम अब्रॉड की बात करते हैं अकोमोडेशन की स्पेशली, तो इज देयर एनी हॉस्टल लाइक फैसिलिटी इन योर यूनिवर्सिटी या फिर बाहर ऐसे रहना पड़ता है? So our university has a proper campus. तो हमारे यहाँ on campus accommodations भी है and off campus accommodations भी है. UK में there are some specific accommodation chains. For example, Scape, IQ. तो इनके अलग अलग बिल्डिंग्स होते हैं डिफरेंट एरियाज में, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं. एंड ऑल ऑफ दीज आर स्टूडेंट अकोमोडेशंस. तो उनके रेंट्स भी स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं एंड प्लस आपको यूटिलिटीज की भी प्रॉब्लम नहीं होती. लाइक दे गिव यू वाईफाई, दे कवर योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, योर वाटर बिल, दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद लॉन्ड्री एंड एवरीथिंग. सो आपको उन सब की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. Yeah, and hostel system is a little different from the way we have it in India. वहाँ पे double occupancy या triple occupancy rooms नहीं होते. They have a flat system जहाँ पे आपका for example एक flat में 5 rooms हैं, तो you guys will have a common area with a common kitchen, but आपके सबके rooms अलग अलग होंगे. तो single bedroom होगा वो, but आप लोग same flat के होंगे तो उस flat का entrance सिर्फ आप ही के उस फ्लैट के रेसिडेंट्स के पास होगा. तो उस हिसाब से सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है वो. एंड यू कैन ऑलवेज गिव योर प्रेफरेंस. फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल है वो ऑल गर्ल्स फ्लैट चाहती है या कोई मेल है वो ऑल बॉयज फ्लैट चाहता है, तो वो भी मिल जाता है आसानी से. एंड इफ यू हैव डाइटरी प्रेफरेंसेस और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कि आप वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, आप नॉन वेजिटेरियंस के साथ नहीं रह पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे उनके साथ, तो वो सब फैसिलिटीज भी वो देते हैं आपको. Okay. उसके साथ ही after first year of your university life, if you have a good social circle, what people generally do is not opting for university accommodations, they go for private shared houses, which could be of any number of people, say ranging from 5 people to 10 people as well. उसमें you get your own room, but you have to share a kitchen or maybe a washroom, but sometimes people have their own washrooms as well. तो shared houses वाला system भी काफी है UK में. Okay, so my final question is, how do you guys think that studying abroad has changed you personally or professionally, anything? But studying abroad is something out of the blue. That's for sure. Studying abroad is very different. It's a new challenge, I could say, for anybody, because you have to leave your home. घर पीछे आप घर छोड़ के जा रहे हो, आप घर के लोगों को पीछे वापस इंडिया में छोड़ के जा रहे हो, एक नई जगह जा रहे हो या मीटिंग न्यू पीपल, आपको पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, वो सब एक टेंशन मन में रहता है. बट वंस यू रीच देयर, यू नो हाउ टू कोप अप विद ऑल दीज फीलिंग्स एंड यू नो हाउ टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ. एक इंडिपेंडेंस आपको मिलती है, आपको इंडिपेंडेंटली रहना आता है, बिकॉज यू नीड टू डू योर ओन लॉन्ड्री, यू नीड टू डू योर ग्रोसरी शॉपिंग, यू नीड टू कुक फॉर योरसेल्फ. एट द सेम टाइम यू नीड टू स्टडी. ऑल्सो यू हैव टू कीप योर मेंटल हेल्थ प्रॉपर. आपको लोनली नहीं जाना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है कि अकेला हूँ, ये है वो है.
आप खुद के लिए स्टैंड करना सीखते हो, आप खुद से रहना सीखते हो, जिसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होती हैं। आपको प्रोफेशनली डेवलपमेंट भी हेल्प करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हेल्प्स यू इन टीचिंग न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ करंटली नॉट अवेलेबल इन इंडिया। से वो आप फर्स्ट ईयर से सीखते हो, जिसकी वजह से आपकी टेक्निकल स्किल्स भी बढ़ती हैं। सो इट्स अ वेरी गुड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऐसे। And for me, I completely agree with Devansh. You learn to become more independent, more confident, and you learn to take care of yourself because घर में तो आपको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ बहुत easily, लॉन्ड्री करनी है, ठीक है, हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना बन के मिलता है कि आप बस डाइनिंग टेबल पे जाइए, आपके पास खाना होगा। बट फॉर अस देयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ग्रोसरी से लेके लॉन्ड्री तक सब चीज़ों का ध्यान खुद रखना पड़ता है। एंड फिर सबसे ज़रूरी होता है आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफिशियल प्रोसेसेस को करना सीख जाते हैं कॉन्फिडेंटली। वंस यू लर्न टू टेक केयर ऑफ योर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है। And professionally, I would say, so I've also worked there for a year now. मैंने अपने डिग्री में थर्ड ईयर में इंडस्ट्रियल ईयर किया था in NHS. So now I know how the work culture is in UK. तो अगर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे परमानेंट जॉब्स ढूंढने की कोशिश या माइंडसेट से जाते हैं, तो उनके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वर्किंग कल्चर इन इंडिया एंड UK इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो वंस यू गो देयर, यू मीट द पीपल, यू लर्न देयर माइंड सेट्स कि उनका प्रोफेशनल माइंड सेट कैसा है, इट गेट्स ईजियर टू गेट अ जॉब देयर। And work-life balance, India की comparison में there is, it is better. And I know a lot of people say that kind of work-life balance is not for them. So it's okay, आप अपना खुद का एक work-life balance develop करते हैं, अपनी खुद की hobbies होती हैं, you decide what you want to do after work. So you learn to do that as well. Okay, this is the part that we are going to discuss in our part 2. So this was the part where we have discussed their university journey, and now follow also part 2 if you want to know their country journey and what they have done and UK में actually life कैसी है। तो ये सब जानने के लिए we go on to the part 2. And like this video if you have watched it this far, share this video to your friends and subscribe to the channel if you haven't already. And we'll see you in the next one.